اردو 12ویں جماعت حصہ معروضی لیکچر نمبر 3۔ آج ہمارا موضوع ہے رموز و اوقاف۔ رموز و اوقاف لغوی معنی جب ہم دیکھتے ہیں تو رموز و اوقاف، رموز اور اوقاف دو الفاظ پر مشتمل ہے۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی ہے علامت، اشارہ یا نشانی۔ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ہے ٹھہراؤ، توقف۔ جب اصطلاحی حوالے سے دیکھتے ہیں تو رموز و اوقاف سے مراد ایسی علامات ہیں جو تحریر میں ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا جملے میں کسی لفظ کو کسی لفظ سے الگ کرتی ہیں اور تحریر میں قطعیت اور معنویت پیدا کر دیتی ہیں۔ رموز و اوقاف کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ تحریر میں ابہام کو دور کرتے ہیں، اصل مفہوم تک رسائی کو ممکن بناتے ہیں، کلام میں قطعیت پیدا کرتے ہیں، ٹھہراؤ کا تعین کرتے ہیں کہ تحریر میں کہاں پہ رکنا ہے اور کہاں پہ رواں تحریر میں چلنا ہے۔ درست ابلاغ رموز و اوقاف کی وجہ سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ مثلا یہ جملہ ہے ہمارے سامنے، اس کے الفاظ جہاز کو روکو مت جانے دو۔ اب یہ الفاظ ہیں، اب اس سے اگر ہم یہ مفہوم لیں کہ جہاز کو روکو مت جانے دو، یا ہم یہ مفہوم لیں کہ جہاز کو روکو مت جانے دو، جب تک اس کے اندر رموز و اوقاف کی علامات سے اس بات کو واضح نہیں کیا جائے گا تب تک اس سے ابلاغ کی قطعیت کا کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا۔ لہذا اس جملے کو قطعیت پر لے جانے کے لیے اس میں رموز و اوقاف کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم اس میں علامت کا استعمال نہیں کریں گے تب تک ہم کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ مثلا ہم نے علامت کا استعمال کیا، جہاز کو روکو، اس کے بعد ہم نے وقفہ کی علامت لگا دی مت جانے دو، تو یہاں پہ حکم امتناعی لگایا گیا ہے کہ جہاز کو روکو مت جانے دو۔ دوسرا جملہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے صرف علامت کو بدلا ہے، جہاز کو روکو مت جانے دو، تو یہاں پہ اس کا مطلب مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ تو یہاں سے رموز و اوقاف کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے تحریر کے اندر اس کے ابلاغ کو قطعی طور پر بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ رموز و اوقاف کون کون سے ہیں؟ سکتہ، جسے وقف خفیف بھی کہا جاتا ہے، وقفہ، وقف نصف کہا جاتا ہے، ختمہ، وقف لازم کہا جاتا ہے، رابطہ، تفصیلیہ، سوالیہ یا استفہامیہ، ندائیہ، فجائیہ، استجابیہ، واوین، قوسین، خط، حاشیہ، علامت مصرع، علامت شعر، علامت تخلص، حذف۔ سکتہ، جسے وقف خفیف بھی کہا جاتا ہے اور اسے کوما بھی کہا جاتا ہے، یہ علامت ہے اس کی۔ سکتہ کی علامت تحریر میں سب سے مختصر وقفے یا ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسے وقف خفیف بھی کہتے ہیں۔ استعمال اس کا اسماء مترادفات ہم رتبہ الفاظ کے درمیان کیا جاتا ہے۔ مثلا علی سکتہ کی علامت لگائیں گے، اکرم اور زاہد دوست ہیں۔ یہاں پہ بہت ہی مختصر ٹھہراؤ کیا جاتا ہے جس کے لیے سکتہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔
वक्फा ये इलामत है, इसे निस्फ वक्फ भी कहा जाता है और सेमीकोलन भी कहा जाता है। वक्फा की इलामत जहां सख्ती से ज्यादा ठहराव मकसूद हो वहां लगाई जाती है, निस्फ वक्फ भी कहलाती है। इस्तेमाल इसका तवील जुमलों के अज्जा में रब्त कायम करने के लिए किया जाता है। मसलन जो बोओगे वक्फा की इलामत सो काटोगे, तो ये इलामत सख्ता से ज्यादा ठहराव की सूरत में लगाई जाती है। राब्ता से वक्फे लाजिम भी कहा जाता है। ये इलामत है कॉलन भी कहा जाता है इसे। जहां वक्फा से ज्यादा ठहराव मकसूद होता है राब्ता की इलामत लगाई जाती है। राब्ता को वक्फे लाजिम भी कहा जाता है। इस्तेमाल कौल नकल करने, जुमला साबका की वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन कदाम ने फरमाया काम काम और बस काम। तफसीलिया ये इलामत है, इसे कॉलन एंड डैश भी कहा जाता है। किसी बात की तफसील बयान करने के लिए पहली जो इलामत इस्तेमाल होती है तफसीलिया कहलाती है। इस्तेमाल इसका तफसीलात बताने से पहले किया जाता है। मसलन पाकिस्तान के बड़े शहर दर्जैल हैं, कराची, लाहौर, क्वेटा, पेशावर वगैरह। खत्मा वक्फ मुतलक भी कहा जाता है इसे, ये इलामत है। फुल स्टॉप भी कहा जाता है इसे। खत्मा भरपूर ठहराव की इलामत है, यानी किसी भी जुमले के इख्तिताम पर इसका इस्तेमाल किया जाता है या मुखफ़िफ़ात की सूरत में किया जाता है। मसलन अली, अकरम और जाहिद दोस्त हैं, खत्मा की इलामत। तो किसी भी जुमले के इख्तिताम पर जहां पे बात मुकम्मल हो जाती है तो खत्मा की इलामत लगाई जाती है, इसे वक्फ मुतलक भी कहा जाता है। सवालिया इस्तफामिया साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये इलामत सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है। इस्तेमाल पूछने या दरियाफ्त करने के लिए किया जाता है। मसलन आप कब लाहौर पहुंचेंगे, उसके बाद सवालिया की इलामत लगाई जाएगी। निदाया, फिजाइया, इस्तेजाबिया इलामत एक ही है। एक्सक्लेमेशन मार्क भी इसे कहा जाता है। जब किसी को पुकारना या मुखातिब करना मकसूद हो तो ये इलामत लगाई जाती है और निदाया कहलाती है। जहां दुख, खुशी, जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल हो तो फिजाइया कहलाती है, और जब हैरत के इजहार के लिए इस्तेमाल हो इस्तेजाबिया कहलाती है। पुकारने, जज्बात के इजहार, हैरत या ताज्जुब के इजहार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मसलन मज़ीद सामीन करामी, निदाया की इलामत जहां पे लगाएंगे आपकी आमद का शुक्रिया अदा करता हूं। उफ़ो कितनी शदीद गर्मी है, फिजाइया की सूरत में। काश वो छलांग न लगाता, इस्तेजाबिया की सूरत में। कौसैन जिसे ब्रैकेट्स भी कहा जाता है, ये इलामत है। कौसैन का इस्तेमाल जुमला मुतरज़ा के लिए किया जाता है। जुमला मुतरज़ा के शुरू और आखिर में ये इलामत लगाई जाती है। मसलन कायदे आज़म ब्रैकेट बानी पाकिस्तान ब्रैकेट क्लोज ने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनाया, तो यहां पे बानी पाकिस्तान जुमला मुतरज़ा है और इसके लिए हम जो इलामत इस्तेमाल करते हैं उसे कौसैन कहा जाता है। खत जिसे डैश भी कहा जाता है। खत की इलामत भी जुमला मुतरज़ा के लिए इस्तेमाल की जाती है। जुमला मुतरज़ा के शुरू और आखिर में ये इलामत लगाई जाती है। मसलन कायदे आज़म, उसके बाद हम खत ड्रॉ करेंगे, खत खींचेंगे, उसके बाद बानी पाकिस्तान, उसके बाद खत खींचेंगे। में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनाया, तो कौसैन और खत दोनों इलामत जुमला मुतरज़ा के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मिसरा ये इलामत है। किसी शेर का एक मिसरा कलम बंद करना हो तो ये इलामत इस्तेमाल होती है। शेर का एक मिसरा तहरीर में इस्तेमाल करने के लिए मिसरा से कबल ये इलामत लगाई जाती है।
मसलन नक्श फरियादी है किसकी शौकीय तहरीर का, तो पहले हम ये अलामत लगाएंगे। शेर, शेर के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है। तहरीर में शेर का इस्तेमाल करना हो तो ये अलामत इस्तेमाल करते हैं। नक्श फरियादी है किसकी शौकीय तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पे करे तस्वीर का। अब इसके शुरू में हम शेर की अलामत इस्तेमाल करेंगे। हवाशी, हवाशी और शेर के लिए एक ही अलामत इस्तेमाल होती है। इबारत में वजाहत तलब अमूर की वजाहत इस निशान के साथ सफा के नीचे करते हैं। इजाफी मालूमात जब देना हो, फुटनोट, हाशिया के लिए ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। मसलन तहरीर के अंदर हम एक पैराग्राफ लिखते हुए बीच में हाइको का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और उसके आगे हम ये अलामत लगा देते हैं और उसके ऊपर उसका नंबर डाल देते हैं कि 1 नंबर। तो सफा के नीचे जाकर हम 1 नंबर की वजाहत जो है वो इस अलामत के तहत करेंगे। हाइको जापानी शायरी की एक सिंफ है जो उर्दू शायरी में भी राइज है, यानी कि हमने वहां की वजाहत तलब चीज को फुटनोट के अंदर, इजाफी मालूमात के अंदर, हाशिया के अंदर वाज़े कर दिया। उसके लिए ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। हज़फ, यहाँ इबारत छोड़ना मकसूद हो, जानबूझकर लफ्ज हज़फ करने के लिए, यानी गैर अखलाकी या किसी भी किस्म के काबिल एतराज अल्फाज जिन्हें दोहराना मुनासिब ना हो उन्हें तहरीर से हज़फ कर दिया जाता है। तखल्लस के लिए ये इस्तेमाल होती है इलामत। शायर तखल्लस के ऊपर एक मखसूस इलामत लगाता है शायर के कलमी नाम के ऊपर। मसलन गुलशन को आग लग रही थी रंगे गुल से मीर, बुलबुल पुकारी देख के साहिब परे परे।